हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोधिसत्वा पर एंड दिस इज दीपक गौतम हियर अगेन विद यू टू डिस्कस हिस्ट्री पेपर 5 of our mains test series program which is there on our platform since 21st of April 2020, and as of now we are done with paper 4, that is ethics paper, and polity section of paper 2, and now we are completing history paper, ancient history, thoroughly. So friends, cutting myself short and jumping to the discussion directly, the first question of our test is post modern age is termed as dark age, critically analyze. एंड हिंदी में देख लेते हैं, उत्तर मौर्य काल को अंधकार युग भी कहा जाता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. This question was about critical analysis of this point. Well, friends, if you will see the concept of dark age and golden age, these were the debate which are going on between the colonial historians as well as the nationalist historian. कॉलोनियल हिस्टोरियन जो थे उन्होंने पोस्ट मॉडर्न पीरियड को एक डार्क एज का कॉन्सेप्ट दिया. आपको ये एक्सप्लेन करना था कि पहले फर्स्ट पार्ट में कि व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क एज. सेकंड पार्ट में आपको देखना था you are supposed to negate this, and why you are supposed to negate this, because there is no such thing which was dark age during that particular period. Why it was called dark age? Because there was political fragmentation, there were foreign invasion, there was repeated defeat of Indians on the hands of foreigners. उसके अलावा कुछ सोशल इविल्स थे जैसे कि कास्ट सिस्टम, आई मस्ट राइट वर्नर सिस्टम, और उसका एक मेंशन मिलता है मनु स्मृति में. अनटचेबिलिटी इस एरा में इमर्ज होती है. उसके बाद विमेंस का जो स्टेटस है उसमें भी डिजेनरेशंस देखने को मिलती हैं. सो इफ यू विल आंसर दिस पार्ट, दिस विल कंप्लीटली फॉलो अप योर answer. And the second part, you are supposed to provide the information which negate this theory, because this was a period of remarkable development. If you will see the political degeneration, like yes, there was no political unification as there was in the modern period or Gupta period, but if you will see the map, you will see the new forces emerge during this period. नए नए किंगडम्स इस समय इमर्ज हो रहे हैं. सातवाना किंगडम डिकैन में आता है, चोल चेर पांड्याज आपके साउथ इंडिया में आते हैं. फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन वाज देयर इन दीज रीजन्स. उसके अलावा आप देखते हैं कि नॉर्थ में भी कुशाना एम्पायर आएगा. उसका एम्पायर दैट विल बी एक्सटेंडेड अप टू समवेयर क्लोज टू द अफगानिस्तान एंड फर्दर westward. So these were the things you were supposed to write, and then you were supposed to provide information about the social life में जैसे especially if you will see the art and architecture, remarkable development in the field of cave construction, stupa construction, and so on and so forth. उसके अलावा आप religious matter में देखेंगे तो Mahayan Buddhism become the sole force of the global era. Further, if you'll analyze this in the scenario of economic development, Silk Route was there, say guilds emerged, foreign trade was very dominant during this period. If you will see the literature, then you will see Mahabhashya was written by Patanjali, so Charak Samhita was written by Charak, and so on and so forth. So these were the development, and if you analyze these development, you will find that ये age जो थी, that was not the dark age, but this was the age of remarkable developments. फाइन. सो दिस वाज सपोज टू बी आंसर. तो ये आपके आंसर की फ्लो होनी चाहिए थी. मैनी ऑफ यू हैव रिटन गुड आंसर, बट यू हैव गिवन द वन पिक्चर. कुछ ने तो सिर्फ नेगेटिव ही लिख दिया, जो कॉलोनियल व्यू था उसको ही सब्सक्राइब कर दिया, जबकि मॉडर्न हिस्टोरियंस उससे डिफरेंट व्यू रखते हैं अपना. फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस पेपर वाज अबाउट द गुप्ता पीरियड, एंड इट वाज गुप्ता पीरियड इज चेरिश्ड एज पीरियड ऑफ रिमार्केबल डेवलपमेंट. दैट इज गुप्ता पीरियड समग्र समृद्धि के तौर पर जाना जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज क्लेम्ड एज गोल्डन एज, यानी उसको स्वर्णिम एरा कहा गया. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन एज था, ये आया था टू काउंटर द नैरेटिव ऑफ डार्क एज विच वाज प्रोवाइडेड अराउंड दिस पर्टिकुलर पोस्ट मॉडर्न पीरियड बाय द कॉलोनियल हिस्टोरियंस. इस पीरियड में क्या करा कि सारी चीजों को एक्सेजरेट करके दिखाया गया था. तो आपको आंसर क्या करना था, उस एक्सेजरेशन को आपको राशनल भी करना था. अब जैसे कि हम बोलते हैं पॉलिटिकल लाइफ, यस पॉलिटिकल लाइफ वाइज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दोबारा से इंडिया में स्टैब्लिश करा गया 500 ईयर के बाद. लेकिन आप देखें ये पॉलिटिकल जो यूनिफिकेशन था, दैट वाज लिमिटेड टू नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट द सदर्न पार्ट. सदर्न में और इमर्ज डेवलपमेंट आ रहे और नए नए डेवलपमेंट आ रहे थे. एम्पायर भी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी इतना सेंट्रलाइज नहीं था. देयर वाज एलिमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. Apart from that, if you'll see the progress in the field of science and technology, then you can write about the Aryabhatta, Vahamir, Shushruta, Mehrauli pillar inscription. So in the field of art and architecture, new school of sculpture, that is Banaras school of sculpture emerged. Then if we talk about the Nagara style of architecture भी emerge होता है. काफी सारी caves भी इस period में construct करी जाती हैं, जैसे अजंता, एलोरा, बाग, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, so and so forth. So these were the development you can cite. But when we
Further, in the field of economy, you can also write about religious transformation. ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसका रिक्रिस्टलाइजेशन था, भक्ति भक्ति एस्पेक्ट अब आपकी जो रिलीजियस एस्पेक्ट का एक मेन कॉन्सेप्ट बन गई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन इमर्ज, शक्ति वर्ष इमर्ज, जो हमारे अभी मॉडर्न एरा का जो रिलीजन है उसको काफी हद तक रिप्रेजेंट भी करता है. लिटरेचर की फील्ड में तो आप देख ही सकते हैं, देयर वाज इमेंस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, स्पेशली वर्क ऑफ कालिदास, भाषा, वात्सायन. These were the people who wrote good number of literature. So this can also be cited, and so you can cite the spread of Indian culture across the Southeast Asia. Southeast Asia में भी इस समय बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर जो था वो इमर्ज हुआ. इकोनॉमिक एडवांसमेंट वाज इक्वली पैल्पेबल. But if you will see this political unification, that it was the political unification in the northern part only. Judicial system में बोलते हैं कि इतना ज़्यादा स्पेशलाइज था और कैपिटल पनिशमेंट नहीं थी. फायन बहुत तारीफ करता है, बट इफ़ यू विल सी द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो मिलता है स्कंदगुप्त का, उसमें आपको एविडेंसेस मिलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी. फर्दर इफ यू विल गो, द कंडीशन ऑफ द कॉमन मासेस वाज नो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एजेस. जो संस्कृत का यूज था, संस्कृत ऑलवेज रिमेन द लैंग्वेजेस ऑफ द एलीट क्लास. हमेशा से एक एलीट क्लास की लैंग्वेज रही है संस्कृत. इट हैज नेवर बीन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस. कॉमन मासेस की लैंग्वेज नहीं थी. तो आपको इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करते हुए इसको बोलना था कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट अपने आप में एक कटोपियन कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है. ऐसी गोल्डन एज कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस पीरियड में. इफ यू विल सी फ्रॉम द आइज ऑफ अ मॉडर्न पीरियड विच इज डेमोक्रेटिक पीरियड, मोस्ट वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट्स टू बी देयर, हमेशा आप इस चीज को, इस एलिमेंट को लेकर चलेंगे. Clear? Now we are switching to the short question, and the first question amongst them was about the मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली के विकास की विवेचना कीजिए और इसके प्रमुख लक्षणों को लिखिए. आपने क्या करा? यू रोट अबाउट द फीचर्स ओनली, बट यू डिडंट मेंशन द एवोल्यूशन. सो आपका एवोल्यूशन लिखना था कि पहले एक सिंपल आर्किटेक्चर से कैसे शिखर आर्किटेक्चर की तरफ मूव करा, और फिर देन आफ्टर यू वर सपोज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. दैट इज अबाउट, इफ यू विल सी दैट in this particular picture you will see good number of features of this particular art form. Yes. So it is about the sanctum sanctorium, pradakshina path. It was shikhar, then shikhar, mandapa, pond. All these things you were supposed to mention in 1 or 2 lines. It was very easy question. You all many of you have answered this very very beautifully. The further, if you will see the second question, it was about throw light on the evolution of cave architecture from 300 BC to 600 AD. So you have to cover Mauryan period, and आप देखिए थ्रू लाइट द एवोल्यूशन. आपको सिर्फ एवोल्यूशन पे डालना था, और जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ आपने उसको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको मेंशन करते हुए आगे बढ़ना था. तो पहले आर्किटेक्चर सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ? मौर्यन पीरियड में. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि ये these caves were Buddhist cave in the earliest form, but in the earliest form they were given to saints of आजीविकास, आजीविका सेक्ट. तो आप इस चीज को, ये जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ यू रोट दैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को बड़ा केयरफुली इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज जो आपका इंप्रेशन होता है वो यहीं से बनता है कि आप कहीं इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे. इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अगर आपको डाउट है तो, बट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मोर डेट्रीमेंटल होता है. क्लियर? देन फर्दर इफ यू विल गो, इस समय पर जो था इंटीरियर पॉलिश था, डोर पर थोड़ी बहुत ही कुछ डेवलपमेंट थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे. बट जैसे ही आप आते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो हाईली ऑर्नामेंटेड केव आ जाती हैं, मल्टी स्टोरी केव्स आ जाती हैं, डिजाइन्स, और उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, और जो गेटवे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंसली कर्व्ड एनग्रेव्ड होते हैं. क्लियर? देन इफ यू विल सी द फर्दर डेवलपमेंट दैट वाज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में बाग केव आती है, आपकी उदयगिरी केव आती है, महेंद्रगिरी केव आती है. इन सारी केव्स के बारे में भी आप एलेबरेट करके और उनके जो ब्यूटीफुल फीचर्स थे उनको आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते चलिए. क्वेश्चन वाज दैट इजी, बट आपने बहुत सारी जगह पर उसको, यहाँ तो हो सकता है कंटेंट की आपको इश्यू रहा हो, तो इन सब चीज़ों पर देखिए ये एस्पेक्ट ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, वेदर इट इज स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन और वेदर इट इज IAS एग्जामिनेशन. फाइन. द थर्ड क्वेश्चन वाज अबाउट द समुद्रगुप्त का नेपोलियन कहा जाता है. बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन था यूपीएससी के लिए. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट सर्विसेज. तो आप इसको तैयार कर लीजिए कैसे समुद्रगुप्त मौर्य ने जो आर्यावर्त रीजन था उसमें सारे नेमीज, नागाज वगैरह को एक्सटर्मिनेट कर दिया. साइमल्टेनियसली ही आल्सो एक्सटर्मिनेटेड द डेंजर व्हिच वाज लाइंग ऑन द इन द बंगाल प्रोविंस.
बैक बैक देन, उस रीजन को खत्म करा। तो जहां पर उसका अपना एक कोर एरिया था उसको उसने अपने डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में करा, बाकी पेरिफेरल रीजन को उसने जीता, उनको हराया, उनको फिर वहां पर डिस्पोज करके रीपोज कर दिया, और वहां से वो हमेशा एक कह सकते हैं सर्विट्यूड शुरू हो गया। यही एलिमेंट होता है फ्यूडल सिस्टम का। दिस एस्पेक्ट यू कैन फर्दर एड इन द नेक्स्ट पेपर विच आई गिव इन द 6th or 7th पेपर, द फ्यूडल सिस्टम आई इंट्रोड्यूस्ड अबाउट। सो दिस इज समथिंग यू वर सपोज टू आंसर। सो ये एक मैप भी आप बना सकते हैं कि कैसे उसका एम्पायर था और कहाँ पर उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, कैसे उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। एंड द फर्दर द क्वेश्चन इज अबाउट दिस कॉइन, गुप्ता कॉइन पे प्रिपेयर कर लीजिए क्वेश्चन। यूपीएससी है तो उसको जीएस पेपर में पूछ ही चुका है, उससे स्टेट सर्विसेज भी। आप इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। फाइन। तो अब जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे थे तो आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करना था लाइफ में, लाइक पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आप कैसे जानते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो रूलर बनते हैं और वो पहले राजा होते हैं जो महाराज की टाइटल को अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। फर्दर इफ यू गो अबाउट द समुद्रगुप्त के बारे में आप देखेंगे तो कुमार देवी उनकी मम थी, और वो लिच्छवी दोहित्रा नाम उनका मिलता है, ताकि बिकॉज ही वॉज अ सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड कुमार देवी। सो दिखता है कि उनका मैट्रिमोनियल अलायंसेस जो था वो फर्दर जनरेशन में कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। फर्दर ही ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सर्वराज्योचित्ता, यानी कि उसने सारे राज्यों को उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स को दिखाता है। ही इज ऑल्सो मेंशन्ड एट्स टाइगर स्लेयर के तरीके से उसको दिखाते हैं, यानी कि उसने वेस्ट बंगाल को भी जीत लिया था। इकोनॉमिक लाइफ, purity of the Gupta coin depicts that up to 500 AD there was a remarkable purity in the gold coin, but thereafter things have started degenerated, और जो वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी कॉइन की जो क्वालिटी है उसके डिजेनरेशन में। तो आप इन सारी चीजों को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द कल्चरल लाइफ, women used to enjoy high places in the royal families, because आप देखें तो कुमार देवी के कॉइन आते हैं तो उन कॉइन से आप देख सकते हैं कि जो क्वींस थी वो भी इशू करती थी अपने नेम से कॉइन, तो वो दिखाता है उनके स्टेटस को। उसके अलावा जो रिलीजियस लाइफ है, लाइक एक और एलिमेंट है वीना टाइप ऑफ कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त मौर्य इन्फॉर्म्स दैट दे आल्सो पैटर्नाइज्ड द सिंगिंग्स एंड ऑल दैट। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब रिलीजियस लाइफ के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परम भट्टारक, दैट मींस ही इट इंडिकेट्स हिज एफिलिएशन विद भागवतिज्म। सो कुमार गुप्ता आल्सो हैविंग दिस कार्तिकेय, एंड दिस आल्सो रिफ्लेक्ट्स द एलिमेंट ऑफ religious life. So therefore you are supposed to answer all these questions in this fashion, और ये फैशन से ही आपको अच्छा एक इंप्रेशन पड़ेगा। आप फ्लो समझिए, क्वेश्चन को डिसाइफर करिए एक बार। before you start the question, see what are the dimension you can put into, or what is the demand of the question। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, believe it or not, you will get good marks at the end of the day। so friends, hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई हैव गिवन यू माय नंबर हियर इटसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिन मी देयर। फाइन। सो जस्ट ज्वाइन अस, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू कैन फर्दर go with us ahead। Have a nice day, here onward, and I hope you will enjoy the period and stay safe, stay at home।